Hello students, in our last lecture there was a little blur from the video of 21 minutes to 32 minutes and the question answers of SR2, the Adventures of Toto, were discussed during that blurred part of the video from 21 to 32 minutes. So I am retaking that video now. I am retaking the question answers of that chapter today. So please refer to page number 11 of your textbook, Movements textbook. There are question answers. Answer 1. Why was Toto added to grandfather's private zoo? Answer 1 is the grandfather took pity on Toto when he saw he was tied to a this is the answer. The grandfather took pity on Toto when he saw he was tied to a feeding trough by the Tonga driver. So he bought him for a sum of 5 rupees and added him to his private zoo. Answer 2. How was Toto a pretty monkey?
So students, this is the second answer. Toto's bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth were pearly white. They displayed a smile that frightened the Anglo-Indian ladies. His hands were dried up and his fingers were quick at mischief. Also, his tail could scoop up any delicacy. Thus, Toto was a pretty monkey. Please note down these two answers. Answer 3. Toto was
not a kind of pet to be kept alone. Students, Toto was not a kind of pet to be kept alone, so grandfather took him to Saharanpur. He was kept inside a canvas bag and some straw was kept for him to make him comfortable. The ticket collector saw Toto at the turnstile of the station, and he classified him as a dog because there was no ticket for a monkey in Indian Railways, but there was a ticket for the dog, and he wanted to charge for his ticket and earn money. Right? So this is the answer. There was no ticket for a monkey, so the ticket collector classified him as a dog.
Students, answer 4 you have to write from the textbook. टेक्स्ट में मोमेंट्स टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 का लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है अ ग्रेट ट्रीट, राइट? वहां से लेके नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 10 के सेकेंड पैराग्राफ के एंड तक, यस, सेकेंड पैराग्राफ के एंड में लास्ट लाइन एंड होती है आउट ऑफ द कैटल, वहां तक ये पूरा आंसर लिखना है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. एंड स्टूडेंट्स, उसमें बीच में एक पोर्शन ब्रैकेट में दिया है, उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है? सो राइट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक पेज 9 लास्ट पैराग्राफ, स्टार्ट विथ अ ग्रेट ट्रीट, वहां से लेके पेज नंबर 10 के सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन आउट ऑफ द कैटल तक आंसर आएगा. बीच में जो ब्रैकेट का पोर्शन है वो आंसर में नहीं लिखना है. Please note down this. Students, answer 5. Toto was a very mischievous pet and the author's family was not very rich. They could not afford the repeated loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So the grandfather sold him back to the Tonga driver for a sum of 3 rupees. So students, with this we are at the end of that SR2 chapter. Correct? Please note down this last answer.
So students, now we are starting with chapter 3 of Beehive, the little girl. So please go to page number 32 of your Beehive textbook. So students, The Little Girl by Catherine Mansfield. So this is about a girl who is living with her father, mother and grandmother. And the little girl fears her father to the extent that she considers him as a monster. Yes. कोई कोई पेरेंट्स कई बार इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि बच्चे जो है वो उनको मॉन्स्ट्रस आइडेंटिटी दे देते हैं, ऐसे मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स ही क्यों हैं, इससे अच्छा हम ऑर्फन क्यों नहीं होते. दे कंसिडर देमसेल्व्स अनलकी बिकॉज दे हैव सच स्ट्रिक्ट पेरेंट्स. बट यू शुड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स that every parent has his or her limitations. आपके दोनों पेरेंट्स लीनियंट रहेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा. दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन. इफ अ पेरेंट becomes strict, it is for the benefit of the child. हमें अगर बच्चे को कुछ अच्छी चीज सिखानी है तो लीनियंट तरीके से भी सिखा सकते हैं, लेकिन कई बार बच्चे जिद्दी हो जाते हैं. सो फॉर दैट बीइंग स्ट्रिक्ट इज नेसेसरी. नाउ आई एम रीडिंग द चैप्टर, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. I am reading from before you read the introduction. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps yes. In the 9th standard, you are knowing your parents better than you were younger. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that might have upset you earlier. पहले उन्होंने कुछ आपको चीजें नहीं लेके दी होगी, लेकिन अभी आप उनकी कंडीशन को समझ पाते हो because you have grown up. So this story is about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding, and this will probably find an echo in every home. This story will find an echo in every home. This story will find a similarity in every home. In every home there will be a set of parent, one set of parent who will always be strict. हर एक के घर में कोई ना कोई स्ट्रिक्ट होता है. किसी के दादा, किसी की दादी, किसी के मम्मी, किसी के पापा, किसी का बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई एक जन स्ट्रिक्ट जरूर होता है. So, to the little girl, he was a figure to be feared. Figure to be feared means a person to be feared. So, a figure here means a person. And avoid it. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. Casually, the father came to the daughter's room and gave her a kiss. To which she responded with, "Goodbye, father." तो लड़की डर डर के, जैसे ही उसके पापा उसको एक किस करके जाते हैं, "Goodbye, father," डर डर के उसको बाय बोलती थी. And oh, there was a glad sense of relief
when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter. So, noise of the carriage growing fainter and fainter means the carriage was moving away from home. उनके घर से फादर का कैरेज दूर जा रहा है, डाउन द लॉन्ग रोड. सो शी फेल्ट ग्लैड कि मेरे पापा जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अच्छा है, जाए. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, मतलब सीढ़ी के नीचे. शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी. एंड शी हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. उसके फादर जैसे ही घर पे आते थे, बैग रख के तुरंत शुरू हो जाते थे. ब्रिंग माई टी इन द ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर go and see if my paper is out there and bring me my slippers. Order पे order. घर पे आए नहीं कि बैग रखी और तुरंत शुरू हो जाते हैं इसके फादर. उसका एक रीजन है. वो बेचारे एक हार्ड वर्किंग पर्सन है और वो घर पे आके थक जाते हैं. पूरा दिन काम करके घर पे आते हैं, थक जाते हैं, तो वो अपना थोड़ा ऑर्डर दिखाना चाहते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं. सो ही कॉल्स आउट टू एवरीवन. अपनी वाइफ को वो बोलते हैं टू ब्रिंग ऑन द न्यूज़पेपर. सबको बोलते हैं, जिसने भी सुना, भाई ब्रिंग मी माई टी, ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. इसकी मदर यानी वो फादर की वाइफ, राइट. मदर वुड कॉल टू हर केजिया. तो केजिया जो है वो हमारे चैप्टर की मेन कैरेक्टर है. केजिया मतलब वो लड़की जिसके बारे में ये चैप्टर है, द लिटिल गर्ल. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. यहां पे स्टूडेंट्स जब भी मदर आता है तो आप समझ लेना फादर की मदर नहीं, केजिया की मदर. अगर फादर के वर्ड से मुंह से भी ऐसे मदर निकलता है तो वो मतलब अपनी वाइफ को रिफर करते हैं, अपनी मदर को रिफर नहीं करते. केजिया की मदर को रिफर करते हैं. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स. तो यहां पे केजिया की मदर केजिया को बोल रही है कि अगर तुम गुड गर्ल हो, कम डाउन, अपने फादर के बूट्स उतारो और उनको स्लीपर्स दो. स्लोली द लिटिल गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. सो हियर स्लिप डाउन मीन्स come down slowly. So slowly she would climb down the stairs and more slowly still across the hall and push open the drawing room door. And by that time he had his spectacles on and he looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. He looked at her with his specs. Terrifying means frightening. It was frightening to the little girl the way her father looked at her over the specs. ऐसे देखता था उसको. This was terrifying look by the father. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots. Take them outside. Have you been a good girl today? फटाफट बोलता है, हरी अप, जल्दी करो. ये क्या लोकल ट्रेन की तरह धीरे धीरे आती है, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह. बी फास्ट. कोई भी काम स्पीड में करना जरूरी है. ये क्या शाम तक आएगी यहां पे? जल्दी से आओ. टेक ऑफ दीज बूट्स एंड बी क्विक. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे?
लड़की अपने फादर को जवाब देने में भी लड़खड़ाती, आई डोंट नो फादर। ये क्या तरीका है? ये क्या है? ऐसे क्यों बात करती है? और गुस्सा आया, यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो अगर तू ऐसे स्टटर करेगी तो तुम्हारी मम्मी तुमको डॉक्टर के पास लेके जाएगी। डोंट स्टटर। स्टटर मीन्स स्टैमर, लड़खड़ा के बोलना बोलते हैं ना, इसको स्टैमर बोलते हैं। फादर इसको स्टटर बोल रहा है। So if you stutter like that, mother will take you to the doctor. She never stuttered with other people. She had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. Students, stutter इंसान तब करता है जब इंसान का दिमाग डर में होता है, जब वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये लड़की फादर के सामने बोलने में इतना डर जाती है कि शी हैज टू स्टटर। वो उसको दिमाग में नहीं रहता है कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, क्या मैं ऐसा कुछ बोलूं कि जिससे फादर गुस्से में आ जाए। दैट इज द रीजन शी इज स्टटरिंग, एंड शी डजंट स्टटर विथ अदर पीपल। What's the matter? What are you looking so vexed about? Vexed. Here it means unhappy. वो खाली ऐसे उसके सामने देख रहे हैं, ऐसे देख रहे। ऐसे देखने की क्या जरूरत है? Why you are looking at me so vexed about? Why you are unhappy? What's the matter? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. On the brink of suicide. इसका मतलब है आप समझो स्टूडेंट्स, फादर वो लड़की को ऐसा बोल रहा है कि ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो कि अभी के अभी सुसाइड करना पड़े। डोंट अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। इस तरह का बिहेवियर मत रखो। कोई कुछ बोल दे तो बस ऐसे रोने का जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, वो मर गई है। Why she should appear like this? Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. Carry my teacup back. He was so big. His hands, his neck, especially his mouth when he yawned. Yawned मतलब ऐसे बकासा मारता था। He looked so big. Thinking about him alone was like thinking about a giant. इसके फादर बॉडी में भी थोड़े बड़े, बॉडी में बड़े ऐसे हट्टे कट्टे। Thinking about him was like thinking about a giant. That is what Kezia feels her father is. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब इसकी ग्रैंडमदर है ना, वो भी इसको शांति से जीने नहीं देती है। वो ग्रैंडमदर क्या करती है, बार बार उसको मम्मी पापा के पास भेजती है। अब उनका इंटेंशन एक्चुअली रॉन्ग नहीं है। ग्रैंडमदर क्या है, घर की सबसे बड़ी है, तो उनका इंटेंशन रॉन्ग नहीं है। ग्रैंडमदर का इंटेंशन ये है कि लड़की और उसके फादर में थोड़ा दोस्ती का रिलेशन बना रहे, उनके बीच में जो एक गैप है, एक दूरी बन गई है, वो कम हो जाए। That is the reason grandmother sees every opportunity of bringing the father and child together. So on every Sunday, she tells Kezia to go and sit with her parents.
But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. So you can see in the picture given below that whenever Kezia came, she always saw her mother reading and father sleeping. आप सोचिए स्टूडेंट्स, एक लड़की के मन में क्या दिमाग में ये चीजें आएगी, ये देखिए। लड़की ऐसा ही सोचेगी कि मेरे फादर तो कुछ काम ही नहीं करते, सिर्फ बैठे हैं ऑर्डर देने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटे बच्चे समझते नहीं हैं कि फादर घर के बाहर कितना काम करते हैं। उनको सिर्फ मदर के लिए रिस्पेक्ट होती है। दैट इज वाई दिस चैप्टर इज गिवन स्टूडेंट्स। जरूरी नहीं है कि हर एक फादर आपको लव दिखाए। कोई फादर्स इतने बिजी होते हैं कि वो लव नहीं दिखा पाते, लेकिन वो जो भी करते हैं वो आपके लिए करते हैं। ये चैप्टर का एक बहुत ही डीप मॉडल है। केजिया अपने फादर को ठीक से समझ ही नहीं पाई है। वो फादर उसको दुख नहीं देना चाहते, लेकिन उसको हर चीज में परफेक्ट बनाना चाहते हैं। उनका तरीका थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन उनका इंटेंशन गलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन केजिया ये समझ नहीं पा रही है। दैट इज द रीजन देयर इज अ गैप बिटवीन द फादर एंड द डॉटर। केजिया यही मानती है कि मदर इज वर्किंग, कभी रीडिंग करती है, कभी काम करती है, फादर तो सोते रहते हैं। क्या बात करूं मैं इनसे, ये तो सोने से ऊंचे नहीं आते। She sat on a stool and gravely watched him until he woke and stretched and asked the time and then looked at her. So she sat on the stool before him and the father woke up. थोड़ा stretching किया, time पूछा इनसे, what's the time? And then he looked at her. Don't stare me so, Kezia. You look like a little brown owl. ये क्या ऐसे बड़ी बड़ी आंखें बना के रखी है, ऐसे पकौड़ी की तरह क्या आंखें बनाई है? वो गुस्सा करते हो उसको। वो जैसे ही उठे वो कैसे ऐसे आंखें बड़ी करके बैठ, ये क्या ऐसे पकौड़ी की तरह आंखें फाड़ के बैठी? डोंट स्टेयर एट मी लाइक दिस। आउल दिखती है, आउल। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. अब देखिए अगेन ग्रैंडमदर। एक ग्रैंडमदर को भी चैन नहीं है। ग्रैंडमदर ने अगेन इसको बोला कि नेक्स्ट वीक फादर का बर्थडे है, तो एक काम करो, उनके लिए कुछ अच्छी सी चीज बनाओ। क्या बनाओ? पिन कुशन बनाओ। पिन कुशन मतलब जिसमें तीन तरफ येलो पेपर हो और अंदर कुछ फिलिंग्स डाल दो, कॉटन है या पेपर है, उसके स्क्रैप्स डाल दो, उनके लिए कुशन बना दो। फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड suggested that she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक येलो सिल्क कपड़ा पड़ा था, तो उस येलो सिल्क कपड़े को तीन साइड से स्टिच करके चौथे साइड से कॉटन या पेपर डाल दो, फिलिंग्स डालो और उसको सिलाई करके एक पिल्लो लाइक कुशन बनाओ। पिल्लो लाइक कुशन। तो लेबरियसली मीन्स हार्ड वर्किंग। So the little child, she stitched the three sides of the yellow silk with a double cotton. But what to fill it with? That was the question. Filling किससे करेगी?
The grandmother was out in the garden, and so she wandered into mother's bedroom to look for scraps. So scrap means waste paper or cloth. So the grandmother is outside and Kezia goes to the mother's room. मतलब अपने मम्मी पापा के रूम में गई देखने के लिए कि स्क्रैप्स कहाँ हैं, मतलब फटे हुए कपड़े या पेपर कुछ मिल जाए जो उसमें कुशन में डाल पाए. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. उसने देखा एक बंडल ऑफ फाइन पेपर, बंडल था पेपर्स का टेबल पे. केजिया को लगा ये वेस्ट पेपर का बंडल है. केजिया ने वो सारे पेपर्स फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े किए और उस कुशन में डाल के फोर्थ साइड को सिल दिया. She gathered them up, tore them into many pieces and stuffed her case and then sewed the fourth side. That night there was a hue and cry. Lot of disturbance. Hue and cry मतलब there was a lot of disturbance in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. वो जो कपड़े जो पेपर इसने फाड़ा ना, वो एक्चुअली में उसके फादर की पोर्ट अथॉरिटी स्पीच थी, उसके ऑफिस की एक स्पीच थी. वो स्पीच के पेपर्स थे, इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, और केजिया को लगा कि ये पस्ती के पेपर्स है, वो उसने फाड़ दिए. फादर ने बोला सर्च करो रूम्स, हर रूम सर्च करो, हर कोना सर्च करो. Rooms were searched, servants were questioned, and finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. Oh yes, I tore them up for a surprise. मदर ने सब कुछ सर्च करने के बाद केजिया से पूछा, केजिया बेटा तू हमारे रूम में तो नहीं आई थी ना? हाँ मैं आपके रूम में आई थी, मैंने वो पेपर्स देखे, मैंने फाड़ के एक सरप्राइज प्लान किया है पापा के लिए. व्हाट? माय गॉड, यू टोर द पेपर्स. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. बेचारी केजिया को पता ही नहीं है क्या हो गया. अब्बी के अब्बी नीचे आओ. Students, please note down this.
So students, that's it for today. In the next lecture, we will take up the remaining part of this chapter. Right? So till then, goodbye students.